Yes, good morning class. So I hope everyone has come now, no one is coming. I've told you to be on time. Still, Jashri, every day 2-3 minutes late. You have to be here around 8:55. Okay, everyone. Don't be late. I have to wait for 5 minutes every day. Now, so today I told you we'll start the new topic of the same chapter in the bipolarity. Again, I told you this topic is also added from the third chapter, that was US hegemony. This has been merged with chapter number 2, and this is one of the important topics if you see from the exam point of view, 9/11 and the global war on terror. So this is an important topic, and today we are going to cover this topic. Basically, first of all, let me tell you what do you understand by 9/11 and the global war on terror. So if we talk about this incident on 11th September 2001, remember the date, 11th September 2001, 19 hijackers hailed from the members of Arab countries took control of 4 commercial aircraft shortly after they took off. It means 19 hijackers from Arabian countries. Arab countries, that is we can call it as Middle East या Western Asia, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. From this region, Middle East and West Asia, from this region 19 hijackers hijacked the 4 commercial aircrafts. कहाँ की बात कर रहे हैं हम? US. Okay. So 19 they hailed from a number of Arab countries took control of 4 commercial aircraft shortly after they took off. So these were the 19 hijackers who took off these aircraft. So you must have heard about this incident, but you must be thinking then date was 11 September 2001, but we write it as 9/11 because in America they mention the month first and later on the date. In India, this is the way we write the date. We mention the day first, then month, then year. But if you see in America, they write the month first. That is why they call this incident and as 9/11 attack on America. So we are going to discuss now. वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे और डिफरेंट 4 बिल्डिंग्स पे अटैक किया था. एक्चुअली क्रैश किए थे जो एयरक्राफ्ट्स को जो उन्होंने कैप्चर किया था, हाईजैक किया था. दे क्रैश्ड दोज एयरक्राफ्ट इनटू दोज important buildings of America. So I have made a chart so that it would be very much clear to you and mind में रहेगा हमेशा. These were the 4 planes, plane number 1, 2, 3 and 4. So first plane जो उन्होंने क्रैश किया था World Trade Center North Tower. There are 2 towers of World Trade Center. जो पहला प्लेन क्रैश हुआ वो कहाँ पे हुआ? World Trade Center के North Tower. Second plane World Trade Center के South Tower में. थर्ड प्लेन पेंटागन बिल्डिंग इन अर्लिंगटन की लोकेशन, अर्लिंगटन सिटी में जगह है एक पेंटागन बिल्डिंग. वो क्या है? यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट. सो दे हैव सिलेक्टेड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स ऑफ अमेरिका. तो जहां पर वो उनको अटैक करना चाहते थे, तो ये यूएस डिफेंस जो डिफेंस का है एक बड़ा डिपार्टमेंट है, उस पर अटैक किया था. लोकेशन याद रखेंगे, पेंटागन बिल्डिंग नाम है उसका, और जगह कौन सी है? अर्लिंगटन. तो ये 3 टारगेट तो वर अटैक और परफेक्टली अटैक किया था ऑन द सेम बिल्डिंग. डिस्ट्रक्शन बहुत हुआ था. वी विल रीड अबाउट इट. बेसिकली आई वांट यू टू रिमेंबर 4 लोकेशन. दिस वाज द 4th लोकेशन जिसका टारगेट क्या था? कैपिटल बिल्डिंग ऑफ यूएस कांग्रेस. कैपिटल बिल्डिंग है, यूएस कांग्रेस बोलते हैं, जैसा हमारा पार्लियामेंट है. इन द सेम वे ये इनका क्या है? लाइक अ पार्लियामेंट. बट दे वर अनसक्सेसफुल वी कैन से. इस पे वो टारगेट जहां रखा था वहां पे अटैक नहीं कर पाए. उससे पहले ही पेंसिल्वेनिया में एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, उसी ग्राउंड में क्रैश हो गया था वो एयरक्राफ्ट. इट मींस 3 टारगेट्स वर सक्सेसफुल. 4th वाला टारगेट जो ये था, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग थी, कैपिटल बिल्डिंग ऑफ यूएस कांग्रेस, उससे पहले ही वो क्रैश हो गया. किस जगह पर? पेंसिल्वेनिया में, पर ओपन ग्राउंड में क्रैश हुआ था. तो इसमें इतना डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ. पर ये याद रखिए, इट इज लाइक अ पार्लियामेंट. जैसा हमारा पार्लियामेंट है वैसे. तो यू कैन सी ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इकोनॉमिक हब है. अगर हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नॉर्थ और साउथ टावर की बात करें, इकोनॉमिक हब है, प्लस बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहीं से चलती हैं अमेरिका की. सो दे वांटेड टू डिस्ट्रॉय इकोनॉमिक पोजीशन. यहाँ पे यूएस का डिफेंस को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, प्लस यहाँ पर पॉलिटिक्स को. देख सकते हैं ये पार्लियामेंट था, तो यहाँ पर अटैक करना चाहते थे. तो वेरी क्लेवरली इट वाज प्लान्ड प्रॉपर्ली कि कैसे 4 एयरक्राफ्ट को वो लोग हाईजैक करेंगे एंड व्हाट विल बी देयर लोकेशन एंड टाइमिंग ऑफ देयर क्रैश. सो यू हैव टू रिमेंबर. आई होप सबके माइंड में आ गया होगा विच प्लेसेस. याद रखना, ये बिल्डिंग का नाम है पेंटागन बिल्डिंग. ये जगह है अर्लिंगटन, जो कि क्या है? यूएस का डिफेंस का डिपार्टमेंट है. यहाँ पे अनसक्सेसफुल हुए थे, जबकि टारगेट क्या था उनका? कैपिटल बिल्डिंग ऑफ यूएस कांग्रेस. इट्स लाइक अ पार्लियामेंट ऑफ यूएस. Is it clear again? 4 locations. क्या था? कितने हाईजैकर्स थे? 19 थे, and they hailed and they came from Arab countries, most of them.
उन्होंने इक्वली डिवाइड होकर 4 प्लेन्स को उन्होंने हाईजैक किया, ठीक है। वो आपका इतना डिटेल में नहीं कैसे किया होता है, इट विल बी लाइक अ मूवी, पर आपको ये क्लियर होना चाहिए। ये भी समझ आ गया कि 9/11 क्यों बोलते हैं, जबकि डेट क्या थी 11 सितंबर थी, बट इन अमेरिका दिस इज द वे दे राइट द डेट, दे मेंशन द मंथ फर्स्ट। सो ये चीज आई थिंक क्लियर होगी। तो और इस टॉपिक का नाम है 9/11। हम बेसिकली अभी अटैक के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका जो रिस्पॉन्स यूएस करेगी, इसका रिस्पॉन्स करेगी, एक्शन होगा तो रिएक्शन तो होगा। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट सुपर पावर। अगर हम बात कर रहे हैं 21 ये जो टाइम कर रहे हैं 2001 की बात कर रहे हैं, तो सुपर पावर की तरह ही एक्ट कर रहा था। तो उन्होंने अनाउंस किया था ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, एक ग्लोबल वॉर शुरू हो रहा है अगेंस्ट टेररिज्म, टेरर। और जो इनके साथ है अच्छी बात है, जो नहीं है इट मींस वो भी उसका क्या है, एनिमी है। दोस कंट्री आर सपोर्टिंग एंड आर विद यूएस। एक स्टेटमेंट आया था यूएस प्रेसिडेंट का, जो उनके सपोर्ट में है तो अच्छी बात है, जो उनके सपोर्ट में नहीं है इट मींस दे आर सपोर्टिंग टेररिज्म। सो इट वाज अ ग्लोबल वॉर, क्योंकि बस अभी यूएस के ऊपर अटैक हुआ है, बट इन फ्यूचर इट कैन बी ऑन एनी कंट्री अराउंड द वर्ल्ड। तो दैट इज व्हाई इट वाज कॉल्ड ग्लोबल वॉर। पूरी दुनिया जिसमें एक टाइप से यूनाइट होकर के वी विल फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। और आज भी देखेंगे तो एक्टिविटीज होती रहती हैं इसे कंट्रोल करने के। बहुत सारे यूएन ने भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं, बट स्टिल हम इसको याद रखेंगे 9/11 एंड द ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म। तो अभी हमने बस 9/11 को डिस्कस किया है। ये टारगेट्स थे 19 हाईजैकर्स के, दोज हेल्ड फ्रॉम द अरब कंट्रीज। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स इसमें आ जाएगा, आप इसके नीचे अगर बना रहे हो उसमें यू कैन राइट कि न्यूयॉर्क सिटी की इकोनॉमिक हब है। इसका लोकेशन कहाँ पे है, न्यूयॉर्क सिटी। बुक में नहीं होगा इसलिए बता रहा हूँ, यू कैन ऐड, ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी में। और इसको टारगेट इसने बनाया बिकॉज दिस टू सेंटर आर द इकोनॉमिक हब ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स या अमेरिका। इसी टारगेट क्यों बनाया, बिकॉज दिस इज द यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट एंड दिस इज, मैंने बताया, दिस इज लाइक अ पार्लियामेंट ऑफ अमेरिका। तो ये ध्यान रखना चाहिए आपको। No need to note down all, उसके आगे लिखे this is all given in your book, just these centers. This is economic hub, location is New York, this location is Arlington, US का defense department, and this was like a parliament and peninsula. Okay, so एक important information which is again not in your book is that man behind the 9/11 terrorist attack was Osama bin Laden of the terrorist group Al Qaeda। जो इस अटैक के पीछे जिसको माना जाता है कौन था मास्टरमाइंड, he was ओसामा बिन लादेन। वो किस टेररिस्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, अल कायदा। ओके, सो आफ्टर 10 years manhunt, Osama was killed by America special forces in Pakistan on May 2nd 2011। manhunt means he continuously उसकी सर्च कर रही थी अमेरिका for 10 long years। उनको लगे, उन्होंने उसको पकड़ा था पाकिस्तान में 2 मई 2011 को उसको मार दिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा 10 years के बाद जो इस अटैक में इन्वॉल्व था ओसामा, मास्टरमाइंड ऑफ अल कायदा ग्रुप का, जो टेररिस्ट ग्रुप का हेड था, उसको पकड़ा 2011 में 2 मई। तो आफ्टर 10 years manhunt, Osama was killed by American special forces in Pakistan on May 2nd 2011। remember the dates and data, you can mention it in your answer, although it is not in your book, but you can mention it, it would be good। written। अब this is the basic structure मैंने important बताया। let's take a reading from your NCERT book and you'll find the same locations, but since I have made it like that so it would be easy for you to remember, otherwise reading करते हुए आप लोग निकल जाते हो आगे, ठीक है। तो this is a structure, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क का, 5 मार्क का। ओके, so on 11 September 2001 19 hijackers hailing from a number of Arab countries took control of 4 American commercial aircrafts shortly after takeoff and flew them into important buildings। उनको हाईजैक किया and they flew them into important buildings which were pre-decided। ऐसा नहीं है suddenly they decided that we have to crash it, it was all well planned, these targets were well planned in advance, timing and everything। one airliner each crashed into north and south tower, one aircraft each crashed into north and south tower of the World Trade Center in New York, which is also the economic hub, as I told you, of America।
A third aircraft crashed into Pentagon building in Arlington, Virginia is the place where the US Defense Department is headquartered. This was the third plane. And the fourth aircraft presumably bound for the Capitol building. Presumably means it was presumed that it was going towards the building of the US Congress, which is like a parliament I told you of America. It came down in a field in Pennsylvania. Okay, तो ये field में आ गया इस जगह पर. तो ये जो fourth attack was unsuccessful, we can say. अगर हम किसी तरफ से बात कर रहे हैं from the attacker's point of view. The attacks have come to be known as 9/11. In America, the convention is to write the month first, followed by the date. Hence, the short form 9/11 instead of 11/9 as we would write in India. So you must know. ये confuse मत होना कि ये date है और ये month है. Actually, this is the month, this is the date. The attacks killed nearly 3,000 persons. If you'll see, कितने लोग यहाँ पे death होती है, कितने लोग की 3,000, ठीक है? In terms of their shocking effects on Americas, they have been compared to British burning of Washington. अब इस शॉक को ये जो people were so terrified, they were so terrified that this incident has been compared to the past incidents which had already taken place in America. जैसे एक हुआ था 1814 में, that was burning of Washington. ब्रिटिश के टाइम पर ये हुआ था, उनके इंडिपेंडेंस के टाइम पे हुआ था एक ये इंसिडेंट. फिर एक बार जब जापानीज पे ने अटैक किया था पर्ल हार्बर में 1941, ये हमें पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब अटैक किया था, स्टिल द पीपल वर सो टेरिफाइड. एंड हाउएवर इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, अगर हम इन टर्म्स ऑफ टेरिफाइड हो तो तीनों में लगभग बराबर ही लोग डर गए थे कि देयर वाज अटैक ऑन अमेरिका. बट इफ वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, तो जो 9/11 अटैक था, दिस वाज द बिगेस्ट. इतनी सारी डेथ्स किसी टेररिस्ट अटैक में अमेरिकन सॉइल में कभी नहीं हुई थी. 3,000 people were dead in this attack. Severe attacks on US and since the founding of the country in 1776. जब फाउंड हुआ था अमेरिका आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस पीरियड 1776, उससे बाद से पहली बार 2001 में जो टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें 3,000 लोगों की डेथ होती है. ऐसा इंसिडेंट कभी अमेरिकन सॉइल में नहीं हुआ था. ऑल्दो जो इससे पीपल लोग टेरिफाइड थे, इट हैज बीन कंपेयर्ड टू बर्निंग ऑफ वॉशिंगटन डीसी और जो हमारा पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ था ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर. बट नंबर ऑफ डेथ अगर देखें तो इसमें हाईएस्ट था. सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेररिस्ट अटैक और हमारे सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. दैट इज व्हाई इट हैज बीन रिपीटेड इन चैप्टर नंबर 2. एंड आल्सो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? दिस इज द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी की बात कर रहे हैं. तो एक अच्छे इन टॉपिक्स को देखा तो ये भी कह रहे हैं जब बाइपोलैरिटी खत्म हो गई तो डोमिनेंस किसका चल रहा था? यूएस का. उनके ऊपर जो अटैक हुआ था उसका रिस्पांस उन्होंने किस तरीके से दिया है, उन्होंने अपना डोमिनेंस कैसे दिखाया है, वी विल रीड इट इन दिस नेक्स्ट पैराग्राफ. फर्स्ट यू टेक द रीडिंग ऑफ दिस कंप्लीट पैराग्राफ प्रॉपर्ली, दिस टॉपिक. रिमेंबर द डेट्स व्हाइल यू आर रीडिंग. दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़ी. रिमेंबर द नेम्स. So before we talk about US response to 9/11 attack, what was the response of US? We need to know about the president of US. उससे पहले कौन था, वो कैसे यहाँ पे आए हैं. So let's know that this topic has been removed. Actually उससे पहले बुक में क्या हमारा the Clinton years topic है ना, Clinton's year. So we are going to discuss about it. जब हमारा चल रहा था गल्फ वॉर फर्स्ट हमने पढ़ा था, क्या डेट आएगी? It was invaded. कब इन्वेड हुआ था कुवैत? 1990 ना. But US या UN का जो ऑपरेशन था, what was the name of the operation? Operation Desert Storm. वो कब हुआ था स्टार्ट? To liberate this Kuwait from the rule of Iraq. 1991. It means इस टाइम पे who was the president? George H.W. Bush. He was the president. His tenure was about to end because in अमेरिका टेन्योर कितने इयर्स का होता है फॉर द प्रेसिडेंटशिप? 4 इयर्स. हमारे यहाँ गवर्नमेंट कितने इयर्स की होती है? प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन इलेक्टेड और द गवर्नमेंट हैज बीन इलेक्टेड, इट इज फॉर 5 इयर्स. बट इफ यू विल सी अबाउट अमेरिका, दे हैव अ टेन्योर ऑफ 4 इयर्स. और ठीक है, सो रिमेंबर दिस. तो 91 के बाद टेन्योर एंड हो रहा था एंड देयर वाज अ प्रेसिडेंट इलेक्शन इन अमेरिका जिसमें जॉर्ज W. Bush was he lost his seat in this president election. He was of the party Republican parties. 2 parties हैं वहाँ पे, Republican Party and
डेमोक्रेटिक पार्टी, दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रिपब्लिकन पार्टी कहते हैं ये लॉस्ट द इलेक्शन और जीते कौन थे उनकी जगह, विलियम जेफरसन, बिल क्लिंटन. So if we talk about the strategy and policies amongst George W. Bush and this William Jefferson, Bill Clinton, differences थे कि basically use the hard power means military powers, areas around the world he wanted to spread his territory, his influence, he wanted to show his power. But on the other hand इनका जो इलेक्शन में एक आइडिया था, जो ये जब अपना कन्विंसिंग कर रहे थे, so his idea was basically internally, ये इंटरनली जो लोगों की प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर फोकस करना चाहते थे. इट मींस ही वाज यूजिंग सॉफ्ट पावर्स. ओके, वहां पे एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, ठीक है, इस टाइप से चीजों पे ध्यान दे रहे थे. तो लोग पीपल सपोर्टेड हिम. और तो इन्होंने बहुत बड़ा वॉर जीता था यहाँ पे, यूएस का डोमिनेंस शो हुआ था वर्ल्ड को 1991 में, गल्फ वॉर में यूएस ने पार्टिसिपेट किया था. ही वाज लीडिंग दिस यूएन के जो ट्रूप्स थे, ठीक है. बट उसके बाद के इलेक्शन में ये हार गए थे. इट वाज शॉकिंग, जो लग नहीं रहा था किसी को. अभी जीतते हैं तो देयर वर 4 ईयर 1992 में जीतते, तो इलेक्शन फिर दोबारा कब होते हैं, 1996 में. अगेन ही वाज इलेक्टेड, लगातार 2 टेन्योर के लिए वाज इलेक्टेड, विलियम जेफरसन, बिल क्लिंटन. उसके बाद क्या होता है, 96 के बाद कब तक चलेगा इनका, 96, 97, 98, 99, अराउंड 2000 या 2001 में फिर से प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं. उसके बाद कौन इलेक्ट होकर के आता है, इनका हिज सन, ठीक है. उनका नाम क्या होगा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ठीक है. सो जो इनको सीनियर भी बोलते हैं और इनको जूनियर बुश भी कहते हैं. सीनियर बुश एंड जूनियर बुश, नेम ऑलमोस्ट सेम है, तो कंफ्यूज मत होना. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, now coming back to the topic, when we are talking about the response of this 9/11 attack, तो जो रिस्पांस में जो मेजर पार्ट प्ले करता है वो कौन करेगा, सन, जो जूनियर था, ठीक है. and he will play the important role when we talk about the response of this terrorist attack. कंफ्यूज मत होना किस बुश की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है. जूनियर बुश की बात हो रही है, जो बेटा था किसका, HW बुश का. ओके, so I am reading some of the important points, then we will take the reading from this NCERT book also. In response to 9/11, George Walker, अगर W का जो फुल फॉर्म होता है वॉकर है, George Walker Bush won the election in the US succeeding Bill Clinton. Succeeding means उनके बाद कौन बनता है, George Walker Bush, ठीक है. George Walker Bush रिपब्लिकन पार्टी के थे. He was the son of HW Bush. He was swift and ferocious. It means he was also of the view of hard power. ये भी इन्फ्लुएंस दिखाना चाहता था, अपनी पावर दिखाना चाहता था. He wants to dominate the world and show the hegemony of US. इनके भी सेम आइडियाज थे जैसे इनके फादर के थे. सबके अलग आइडियाज होते हैं, ठीक है. तो इनके भी हार्ड आइडियाज थे, हार्ड व्यूज थी. He wanted to follow हार्ड पॉलिटिक्स. हार्ड पॉलिटिक्स वर्ड जहां पर आता है मतलब पावर और मिलिट्री का ज्यादा यूज करते हैं अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए अराउंड द वर्ल्ड. सॉफ्ट पॉलिटिक्स क्या होती है, वी आर नॉट, कोई प्रेसिडेंट ऐसा आएगा जैसे ही जो ये थे हमारे जेफरसन, बिल क्लिंटन, ही डिड नॉट वांटेड टू इंटरफेयर इन द वर्ल्ड अफेयर्स इतना ज्यादा. ये अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स, इंटरनल ग्रोथ और डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करते थे. तो ये सॉफ्ट पॉलिटिक्स पे विश्वास करते थे. एंड अगेन जब उनका बेटा था, ही वांटेड टू फॉलो दिस हार्ड व्यू और हार्ड पॉलिटिक्स. सो इसको मौका मिल गया कहां पर, जब ये अटैक होता है 2001 में, सितंबर में 2001 में अटैक होता है अमेरिका के इन टारगेट्स पे जो मैंने आपको बताया है. सो अब इनकी क्या स्ट्रेटजी है. सो डायरेक्टली द यूएस लॉ अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ दिस जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ठीक है, इसके अंडर होता है, ये लॉन्च करते हैं एक ऑपरेशन. ऑपरेशन का नाम होता है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम. ऑपरेशन नेम याद रखेंगे. जब अमेरिका रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, उस रिस्पॉन्स के लिए, बदलने के लिए एक जो ऑपरेशन को आगे लेकर के आती है अमेरिका, उस ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम अगेंस्ट ऑल दोज सस्पेक्टेड बिहाइंड अटैक इन 9/11, मेनली Al Qaeda and Taliban regime. It started in 7th October 2001. तो ये जो ऑपरेशन स्टार्ट किया, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, बेसिकली इट वाज ऑपरेशन टू टेक रिवेंज फ्रॉम ऑल द सस्पेक्टेड पीपल. बेसिकली वो पीपल कौन थे, फ्रॉम 2 टेररिस्ट ग्रुप, अल कायदा एंड तालिबान, ठीक है. दोनों टेररिस्ट ग्रुप इसमें मिक्स थे, जितने हाईजैकर्स थे दे वर फ्रॉम द टेररिस्ट ग्रुप्स ऑफ अल कायदा एंड तालिबान. और ये जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है हमारा ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ये स्टार्ट होता है 7th October 2001. अटैक का हुआ है 11 सितंबर, उसी के नेक्स्ट मंथ से, मतलब कि 7th October 2001 से ये ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है. वेयर दे स्टार्ट सर्चिंग फॉर ऑल द अक्यूज्ड, या जो भी सस्पेक्टेड पर्सनैलिटीज थी उनको ढूंढ करके लाते हैं, ठीक है. तो टारगेट्स क्या थे बेसिकली इस ऑपरेशन के,
एम ऑफ दिस ऑपरेशन वाज टू पुट एन एंड टू द तालिबान रिजाइम। जो ये ऑपरेशन ने स्टार्ट किया, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, ये चाहते थे जो ये रिजाइम है, जो ये ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है, इन जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनको जड़ से खत्म करना है, ठीक है। एम ऑफ दिस ऑपरेशन वाज टू पुट एन एंड टू द तालिबान रिजाइम एंड अल कायदा इन अफगानिस्तान। इसकी लोकेशन कहाँ थी? अफगानिस्तान में। और चैप्टर में हमारे इसके जो अगला टॉपिक्स हम पढ़ेंगे अफगानिस्तान के बारे में पढ़ना है, तो हम देखेंगे ये वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है कैसे इमर्ज होते हैं, अल कायदा और तालिबान। तो इसका फिलहाल ये याद रखेंगे, जो लॉन्च किया था ऑपरेशन, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था टू फिनिश ऑफ एंड पुट अ एंड टू दीज ऑर्गेनाइजेशन एज तालिबान रिजाइम एंड अल कायदा इन अफगानिस्तान। विदाउट परमिशन, अब इसमें क्या करने लगे ये लोग, विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट यूएस इन्वेडेड ऑल सस्पेक्टेड टेररिस्ट टारगेट्स। यूएस आर्मी अलग अलग कंट्रीज में जहां भी उन्हें सस्पेक्ट था कि यहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, नॉट ओनली अफगानिस्तान, किसी भी कंट्री में, बेसिकली इन द अरब रीजन, मिडिल ईस्ट में, वो उसमें इंटरफेयर कर रहे थे और अपने ऑपरेशंस के जो भी उनको रिक्वायर्ड था वो स्टेप्स ले रहे थे। दे वर नॉट टेकिंग द परमिशन ऑफ एनी कंट्री और एनी गवर्नमेंट, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ऐसे डोमिनेंस भी दिख रहा है यूएस का। उनको रिक्वायरमेंट थी कि किसी कंट्री से पूछे, उन्हें रिस्पांस चाहिए था, उन्हें अपना बदला चाहिए था, उन्हें टेररिस्ट ऊपर ढूंढना था, तो दे वर डूइंग इट अंडर दिस ऑपरेशन कॉल्ड ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। विदाउट परमिशन द गवर्नमेंट यूएस इन्वेडेड ऑल सस्पेक्टेड टेररिस्ट टारगेट। जितने भी सस्पेक्टेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे, टारगेट्स थे, दे इन्वेडेड ईच एंड एवरीवन, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने कुछ चीज बनाई है, सीक्रेट प्रिजन्स। इनमें से जो लोग इनको मिल रहे थे, दे वर ब्रिंगिंग देम एंड दे वर पुटिंग देम इनटू सीक्रेट प्रिजन्स। दैट मारा नहीं, सीक्रेट प्रिजन्स कैसे थे ये? यूएस फोर्सेस मेड अरेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ट्रांसपोर्टेड एंड डिटेन्ड द पर्संस इन सीक्रेट प्रिजन्स। अरेस्ट किए, इन लोगों को डिटेन किया प्रिजन्स में, बट दिस प्रिजन्स वर सीक्रेट, जो वर्ल्ड में कोई भी वहां पर आ नहीं सकता था। वहां पे कोई इंटरनेशनल लॉज अप्लाई नहीं होते थे, किसी कंट्री के लॉज अप्लाई नहीं करते थे, ह्यूमन राइट्स अप्लाई नहीं करती थी। आज भी अगर कोई अरेस्ट होता है किसी क्राइम के लिए, तो एक प्रोसीजर फॉलो होता है, ये नहीं कि वी ट्रीट हिम लाइक एनिमल। देयर इज अ प्रॉपर एक प्रोसीजर जो गवर्नमेंट और लॉ के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाता है। जो सामने अक्यूज पर्सन है उसको भी मौका दिया जाता है कि ही कैन प्रेजेंट हिमसेल्फ इफ ही थिंक्स ही इज इनोसेंट। बट वहां पर ऐसा नहीं था, किसी भी कंट्री का लॉ वर्क नहीं कर रहा था, यूएन भी उसमें इंटरफेयर नहीं कर पा रही थी, यूएस का डोमिनेंस इतना ज्यादा था। इन चीजों से हम ये दिखाना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे देखिए तभी लिखा है यूएस फोर्सेस मेड अरेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ट्रांसपोर्ट, अरेस्ट किया, फिर उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे एंड डिटेन कर रहे थे इन सीक्रेट प्रिजन्स। एक एग्जांपल दिया है लाइक गुंटानामो बे, अ यूएस नेवी बेस इन क्यूबा, जो क्यूबा हमने पहले पढ़ा था, व्हिच यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर। नाउ यहाँ पर एक सीक्रेट प्रिजन बना लिया यूएस ने, इस प्रिजन का और लोकेशन का नाम क्या था? गुंटानामो बे, अ यूएस नेवी बेस इन क्यूबा। तो ऐसे लोकेशन में ये प्रिजनर्स को रख रहे थे, वेयर प्रिजनर डिड नॉट एंजॉय एनी इंटरनेशनल लॉ और इट्स प्रोटेक्शन ऑफ इट्स ओन कंट्री नॉर ऑफ यूएस। कोई उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था, वहां पे कोई भी लॉस अप्लाई नहीं हो रहे थे इनके जो सीक्रेट प्रिजन्स थे। Even the UN representatives were not allowed to meet the prisoners. UN के जो representatives थे, अगर उनकी कंट्रीज UN में कंप्लेंट भी डाल रही थी कि हमारे सिटीजन्स को अगर इन्होंने प्रिजनर में, एक सीक्रेट प्रिजन्स में डाला है, तो वहां पर UN भी कोई एक्शन नहीं ले पा रही थी। इतना डोमिनेंस यूएस का उस टाइम पे था। ओके, so this was the response of US to this 9/11 terrorist attack. So we'll take the reading from your book also. A short paragraph they have given in this. The US response to 9/11 was swift and ferocious. Clinton had been succeeded in US presidency by George W. Bush of the Republican Party. He was the son of earlier President George H.W. Bush. Was confused mat hona, which was the senior Bush, which was the junior Bush. Okay. Unlike Clinton, Bush had much harder views of US interests. अब हार्डर वर्ड्स यूज कर रहा हूं तो समझो मिलिट्री एंड पावर का यूज ज्यादा करेंगे, एंड ऑफ द मींस बाय व्हिच टू एडवांस देम एज अ पार्ट ऑफ इट्स ग्लोबल वॉर। अब उनको यहाँ पे एक पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। एज अ पार्ट ऑफ इट्स ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, द यूएस लॉन्च्ड ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। तो ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम हम किस लिए लॉन्च कर रहे हैं? अंडर ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, ये नाम दिया था, वी आर स्टार्टिंग अ ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, और उसके अंदर एक ऑपरेशन क्या है? एंड्योरिंग फ्रीडम। Against all those, ये उन लोगों के against था, all those suspected to be behind this attack, mainly Al Qaeda and the Taliban regime in Afghanistan. The Taliban regime was easily overthrown, but remnants of the Taliban and Al Qaeda have remained potent, as is clear from the number of terrorist attacks launched by them against Western targets since. एक तो इन्होंने easily इन टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था ऑफ तालिबान एंड अल कायदा, बट स्टिल वी कैन से इनका कुछ ना कुछ पार्ट अभी भी रिमेनिंग है। दैट इज व्हाई उसके बाद भी दे हैव सीन
various attacks on the Western world. It means Taliban और जो हमारा क्या Al-Qaeda, their rampants are still left. कुछ part अभी भी है. The US forces made arrests all over the world, often without the knowledge of the government of the person. जिस person को they were arresting, without the knowledge of their government, they were arresting the person and transported these persons across countries and detained them in secret prisons. Some of them were brought to Guantanamo Bay, a US naval base in Cuba, where the prisoners did not enjoy the protection of international law or the law of their country or that of the US. Even the UN representatives were not allowed to meet these prisoners. आपके इसमें है response में you have to study this much. So this was the response of this attack of 9/11 terrorist attack. So take a reading of that. All the points are important. If I say कुछ भी extra नहीं है, everything is important. So this important is being very important. Read this carefully.